When you begin to live a life of self-righteousness, जब आप एक ऐसा जीवन जीते हैं जहाँ पे आप एक स्वार्थी वाला जीवन जीते हैं, that you will start to corrupt your heart. तो जब आप अपने मन को आप वहाँ पे दूषित करने लग जाते हैं। Today, that is what I really want to bring it to each one of you. और इसीलिए आज मैं ये आपके सामने जो लाया हूँ, When you begin to live a life of self-righteousness, जब आप एक ऐसा जीवन जीते हैं जहाँ पे आप एक स्वार्थी वाला जीवन जीते हैं, that you will start to corrupt your heart. तो जब आप अपने मन को आप वहाँ पे दूषित करने लग जाते हैं। Jesus always spoke against the Pharisees. जो यीशु है उसने हमेशा फरीसियों के विरुद्ध में बोला। The Pharisees were the religious leaders. जो फरीसी थे वो एक धर्म गुरु थे। Jesus was not crucified by the criminals. जो यीशु मसीह थे वो उन जो वहाँ पे क्रिमिनल्स थे विरोध उनके द्वारा नहीं क्रूस पर टांगे। Jesus was not crucified by gangsters. जो यीशु था वो किसी गैंगस्टर के द्वारा क्रूस पर नहीं लटकाया गया। But the people who crucified Jesus were the ones whose hearts were corrupted. लेकिन जिन लोगों ने क्रूस पर यीशु को चढ़ाया वो जन थे जिनके मन दूषित हो गए थे। They were the religious people. वो धर्मी लोग थे। They were the top religious people. वो वहाँ पर वो बोलचाल में धार्मिक लोग थे। They were the ones who was living in a way where they want people to live up to their standard. वो एक ऐसी जगह पर रह रहे थे जहाँ पर वो चाहते थे कि लोग उनके स्तर के अनुसार रहें। But they were never living up to the standard of what Christ described. लेकिन वो कभी भी उस स्तर तक नहीं रह पाए जो मसीह चाहता था। They were the self-righteous people. और वो सब स्वार्थी जन थे। And that is why Jesus spoke in the book of Luke chapter 18 verse 9. और इसीलिए लूका की पुस्तक उसका अध्याय 18 के 9 में यीशु कहता है, It tells about the parable in the purse. वो वहाँ पे दृष्टांत के बारे में कहता है। And it tells about the parable of the righteous man. और वहाँ पर वो एक धर्मी जन के बारे में बताता है। They began to speak this. It spoke this parable to some who trusted in themselves that they were righteous and they were the one who would always despise others. उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। Who were the ones Jesus spoke against? आपको क्या लगता है कि यीशु किसके विरुद्ध में थे? The ones who trusted on themselves. ऐसा जन जो खुद अपने ऊपर ही भरोसा रखता था। Number two, they were the ones who would despise and look down on others. और दूसरा वो जन थे जो दूसरे लोगों को नीचा दिखाते थे। When you begin to trust upon yourselves, जब हम अपने ऊपर ही भरोसा रखने लगते हैं, then you begin to look out for a God of self. और आप सिर्फ खुदा की और अपने ही स्वार्थ के लिए देखते हैं। You begin to look for a selfish God. आप एक स्वार्थी परमेश्वर की खोज You करते do not look for the God Almighty. आप उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए खोज नहीं रहे। You look for a God that idolizes your imagination. Pardon? You look for a God that idolizes your imagination. और आप एक ऐसे खुदा की तलाश में जो आपके आंखों के जो सपने हैं जो चमक दमक है उसको पूरा When करे। you trust on yourselves, जब हम अपने आप पर भरोसा रखते हैं then you begin to feel that you do not need God. तब आप ऐसा भी नहीं महसूस करते कि आप खुदा को When नहीं you begin जानते। to trust upon yourselves, जब आप अपने ऊपर भरोसा रखते हैं that God cannot save you. तब खुदा आपको बचा नहीं सकता। When you are a man who is always leaning upon your own understanding, जब आप एक ऐसे व्यक्ति बनते हैं जब आप सिर्फ अपनी ही सोच के अनुसार हमेशा जीना चाहते हैं, then you cannot experience the power of God that the Holy Spirit wants you to experience. तो आप कभी भी उस पवित्र आत्मा की सामर्थ को खुदा की सामर्थ को कभी भी आप उसका अनुभव नहीं कर सकते। That is why the Bible in Proverbs chapter 3 verse 8 says, और इसीलिए नीति वचन की पुस्तक उसका अध्याय 3 का 8 कहता है, trust in the Lord with all of your heart and lean not on your understanding. उस परमेश्वर पर अपने पूरे संपूर्ण मन से भरोसा रखना और अपनी बुद्धि पर भरोसा ना रखना। When you trust on yourselves, जब आप अपने आप पर भरोसा रखते when you हैं, trust on your understanding, जब आप अपनी समझ पर भरोसा, then as I said, you begin to develop a God that idolizes your imagination. तो फिर आप एक ऐसे परमेश्वर का निर्माण करते हैं जो सिर्फ आपकी ही आंखों के लिए अच्छा है। And you begin to take a path of sin. तो फिर आप एक ऐसा रास्ता लेते हैं जो पाप का है। Proverbs chapter 28 verse 13 says, नीति वचन की पुस्तक उसका अध्याय 28 का
13 में, He who covers his sin will not prosper, but whoever confesses and forsakes will have mercy. जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कोई सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। Why is it so easy for us to commit and fall into sin? हम लोगों के लिए इतना आसान क्यों होता है कि हम परीक्षा में गिरते हैं और उसमें पड़ जाते हैं? Because now we want people to keep up to our standard. क्योंकि अब हम चाहते हैं कि जो लोग हो वो हमारे स्तर के हो। We want God to keep up to our standard. हम चाहते हैं कि जो परमेश्वर है वो हमारे स्टैंडर्ड का हो। We want the church to keep up to our standard. हम चाहते हैं कि जो हमारी कलीसिया हो वो हमारे स्टैंडर्ड की हो। And the world began to portray such that sin becomes very attractive. और जो शब्द है उनको इतने आकर्षण रूप से रखा जाता है कि जो पाप है वो बहुत ही आकर्षित लगता है। Sin has become very normal in the eyes of people. जो पाप है वो लोगों की आंख में बहुत ही साधारण सा हो गया है। Number 3, we also have taken the grace of God so easily. और तीसरा अंक ये है कि हमने खुदा के अनुग्रह को बहुत ही हल्के में जांचा है। We have been used to call as the unlimited grace of Jesus. और हमें ऐसा कहा जाता था, पुकारा जाता था कि हम पर खुदा का असीमित अनुग्रह है। Because we begin to think no matter how much sin we commit, Jesus will forgive us. क्योंकि हम ये विश्वास रखते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि हम फर्क नहीं पड़ता, हम कितने भी पाप कर लें यीशु मसीह हमें माफ कर देगा। Once a preacher went to jail. एक बार ये जो प्रचारक है वो जेल में गया He had fallen into sin and he was taken to the jail. और वो वहाँ पर किसी पाप में गिर गया और उसको जेल में ले जाया गया। And once he was visited by a friend. और वहाँ पर उसका एक मित्र उससे मिलने And आया। the friend asked him, how did this happen? How did this happen? तो उसका जो मित्र है वो पूछता है कि ये कैसे हुआ? When did you stop loving God? आपने कब परमेश्वर से प्रेम करना बंद कर दिया? And he said, और उसने कहा, I did not stop loving God, मैंने परमेश्वर से प्रेम रखना बंद नहीं किया, but I stopped fearing God. लेकिन मैंने खुदा का भय मानना बंद कर दिया। When you begin to stop fearing God, जब आप खुदा का भय मानना बंद कर when you begin to trust on your own understanding, जब आप अपने ही समझ पर भरोसा रखने लगते हैं keep God out of your life. और आप खुदा को अपने जीवन से बाहर कर देते When हैं, you begin to take the grace very easily, जब आप उस अनुग्रह को बहुत ही आसानी से हल्के में जांचते हैं, then you begin to fall into sin. तो जब आप पाप में गिर जाते हैं, God gives you chances many times खुदा आपको कई मौके देता है so that in the period of God's wonderful grace, He gives you a time to repent. ताकि वो जो सुंदर समय होता है उस अनुग्रह का वो इसलिए होता है ताकि आप उसमें पश्चाताप कर सकें। God's forgiveness and grace is not for you to take advantage and fall into sin again and again, again and again, again and again. जो खुदा है वो हमारे पापों को माफ करता है, लेकिन जो अनुग्रह है वो इसलिए नहीं है कि हम पाप में बार बार और बार बार और बार बार गिरते रहें। When Judas had committed treachery against Jesus, जब वो यहूदा इस्करियोती था, जब उसने यीशु के विरुद्ध में पाप किया था, Jesus gave him an opportunity to repent. जो यीशु मसीह था उसने उसको मौका दिया था कि वो They were पश्चाताप। sitting on the table, वो एक मेज पर बैठे थे and he pointed towards Judas and said, "The one who dips his hand first is the one who has cheated me." और यीशु मसीह उसको संकेत करके कहते हैं कि पहला जो जन इस रोटी पर हाथ रखेगा, डालेगा, वही होगा जो मुझे धोखा देगा। Judas was a man who walked with Jesus, saw him perform miracles, stayed glued to him for 3 years. और जो जुदास था, यहूदा इस्करियोती था, वो ऐसा जन था जो यीशु के साथ रहता था, चलता था, और उसने देखा था यीशु मसीह को कई बड़े चमत्कार करते हुए। You can still be in the ministry. आप कलीसिया में भी हो सकते You हैं, can still be coming to church. आप हमेशा कलीसिया में भी You may be one person who has experienced the power and miracle of God in your life. हो सकता है। आप भी ऐसे मनुष्य हो जिसने अपने जीवन में खुदा के सामर्थ, चीज और चमत्कारों को देखा हो, But your heart is so corrupted लेकिन जो आपका मन है वो बहुत दूषित हो, because you do not see what the Holy Spirit wants you to see. क्योंकि आप वो नहीं देखना चाहते जो पवित्र आत्मा चाहता है कि आप देखें।
You begin to trust in your own understanding. आप अपनी ही समझ के ऊपर भरोसा You रखें। begin to have the self-righteousness. हम अपने ही आप में स्वार्थीपन You begin to have the self-idolized God. आप अपने ही अनुसार खुदा के एक आकार दे देते हैं। And one day, और एक दिन a day will come when you will fall short in your sin and you will fall. और एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप अपने पाप में गिर जाएंगे। My dear brothers and sisters, मेरे भाई और बहन, as I was praying, what should I speak to you this afternoon? मेरी प्रार्थना है कि जो आज के दिन मैं आपसे बोल रहा हूँ, The Lord convicted to me to speak about this topic to our church. खुदा ने मुझे ये दिलाया कि मैं इस विषय में अपने कलीसिया से बात करूं। Do not be so lazy and sluggish in your sin, taking advantage of the grace period God has given you. अपने ही पाप में इतना ना गिर जाओ, उस अनुग्रह का फायदा इतना ना उठाओ कि That you will fall in your sin. कि आप अपने ही पाप में गिर जाओ। Hallelujah. मैं How many of you are living such a life? आप में से कितने जन हैं जो ऐसा जीवन जी? How many times God has shown you His grace? कितनी बार खुदा ने आपको अपना अनुग्रह दिखाया? Oh, for how many years have you walked with Jesus? ओ कितने ही सालों से आप यीशु के साथ चल रहे हैं And still you do not see the God Almighty. और फिर भी आपने अभी उस सर्वशक्तिमान खुदा को नहीं देखा। God's grace is for you so that you would get the opportunity to confess and turn back to Jesus. जो खुदा का जो अनुग्रह है वो आपके लिए है, वो जो समय है वो मौका वो आपके लिए कि आप अपने पाप का पश्चाताप करें और अपने मुख को उसकी ओर फेरें। If you were a child of God, अगर आप खुदा के जन हैं then you have the DNA of God in your life. तो आपके जीवन में खुदा का DNA होगा। The blood of God runs through your veins. आपकी नसों में खुदा का लहू बहेगा And therefore the love of Jesus is in your heart. और इसीलिए जो यीशु का प्रेम है वो आपके मन में The होगा। Bible says that if you do not know love, वचन कहता है अगर तुम प्यार को नहीं जानते then you do not know me. तो आप मुझे भी नहीं जानते। That much is powerful. ये जो वाक्य बहुत ही सामर्थी। There are so many people who are loveless people of God. ऐसे बहुत से जन हैं खुदा जन के जिन्होंने अभी तक प्यार को नहीं पाया है। 1 John chapter 4 verse 8 says, पहला यूहन्ना उसका अध्याय 4 का 8 He कहता who does not love does not know God, for God is love. जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। You may be religious. हो सकता है कि आप कोई धार्मिक हो You may be keeping all of the requirements of being a believer. और जो भी विश्वासी बनने के लिए जो भी योग्यताओं की जरूरत होती है आपके अंदर वो सारी है। Jesus sets up his standard. लेकिन खुदा ने एक स्तर को रखा हुआ है। He says that no matter what you do, वो कहता है कि फर्क नहीं पड़ता आप क्या करते हैं। if you are a person that does not have the love of God, अगर आप वो व्यक्ति हैं जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं, the fact is you really do not know me. सच बात तो ये है कि तुमने परमेश्वर को जाना ही नहीं। You would only want to love people that look like you. आप सिर्फ ऐसे ही व्यक्तियों से प्रेम करना चाहते हैं जो आपकी तरह दिखता है। You only want to love people who are intellectuals like you. आप ऐसे ही व्यक्ति से प्रेम रखना चाहते हैं जो आपकी की तरह बातें करते You हैं। only want to love people who goes to the same church. आप ऐसे ही व्यक्ति से प्रेम रखना चाहते हैं जो एक ही कलीसिया में जाते हैं। Forget about different religion. आप अलग अलग धर्मों के बारे में भूल जाए। There are people of such character. और ऐसे चरित्र वाले लोग भी हैं। Sometimes because of my belief, कभी कभी मेरे विश्वास के कारण, because of my faith, मेरे विश्वास के कारण and sometimes when I go back home, people invite me to speak in their church. जब मैं अपने गांव में जाता हूं तो जो लोग हैं वो मुझे बुलाते हैं प्रचार। I am not able to go to the church where I come from. मैं उस कलीसिया में नहीं जा पाता प्रचार के लिए जहां से मैं आया हूं। My father has been a deacon of the church. जो मेरे पिता थे वो उस कलीसिया में डेकन थे। He's one of the senior leader in the church. वो उस कलीसिया में एक सीनियर अगुवे थे And I'm not able to go with my daddy और मैं इस योग्य नहीं हो पाया कि मैं वहां पर अपने पिता के साथ जाऊं and my parents. और मैं अपने माता पिता। Sometimes the way they look at me, कभी कभी वो मुझे जिस तरीके से देखते हैं like I am one of the traitors. Traitor. और वो ऐसा लगता है कि जैसे मैं वहाँ पे कोई एक गुंडा हूँ। Like I have already forsaken Jesus. कि ऐसा मानो कि जैसे मैंने कि उनके लिए यीशु को छोड़ ही I दिया was है। going to Arunachal Pradesh. मैं अरुणाचल प्रदेश जा रहा था। I visited this place called Zero.
मैं उस जगह पे गया जिसको कहा जाता है जीरो, and I met one elderly guy who was from a Baptist church. और मैंने वहाँ पर एक अपने जो सीनियर है मैं उनसे मिला जो कि मेरे ही गांव बैप्टिस्ट चर्च से, So मेरे गांव से नहीं, he was from Zero, Arunachal वो Pradesh. वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश जीरो जगह से थे। And he said, so many people are leaving our Baptist churches. और वो कहता है कि बहुत से जन है जो ये आओ बैप्टिस्ट चर्चेस को छोड़ रहे हैं, Baptist churches. And they're moving towards revival church. और वो दूसरी जो बेदारी वाली कलीसिया है उसमें जा रहे हैं, They're going to Pentecostal churches. वो पेंटिकोस्टल की कलीसियाओं में जा रहे हैं, They're going to non-denominational churches. वो जो नामधारी जो कलीसियाएं नहीं है वो उसमें जा रहे हैं। He was a bit unhappy that these things were happening. और वो थोड़ा सा नाखुश था ये जो चीजें हो रही थी इसके लिए। And I asked him, what do you think is the reason why they are leaving your church? और मैंने उनसे पूछा कि आपके अनुसार ऐसे क्या कारण है कि वो कलीसिया को छोड़ रहे। He was finding it very difficult to answer that question. वो बहुत ही मुश्किल में लग रहा था कि वो उस सवाल के हल को जवाब दे। You see, sometimes when you begin to see things from the standard of man, देखिए, जब आप कभी जो चीजें हैं उनको एक व्यक्ति के स्तर के अनुसार देखते हैं, then you begin to calculate everything according to your standard. तो फिर आप हर एक चीज को दोषी ठहराते हैं अपने स्टैंडर्ड के अनुसार। Today I am so grateful to God that I have experienced the power of the Holy Spirit. आज मैं खुदावन का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मैंने खुदावन के सामर्थ का अनुभव किया है। I'm able to discern what the Holy Spirit speaks to me. मैं उसको भाप पाया हूँ जो पवित्र आत्मा मुझसे कहता है। I have moved further away from growing deeper in Jesus. मैं उस यीशु के साथ और गहरे संबंध वाले रिश्ते में मैं और आगे बढ़ चुका। God developed in me a heart and He treasured me to love people irrespective of who they are. और खुदा ने मेरे को अपने प्यार से भरा कि मैं लोग क्या है उसको छोड़कर मैं उनसे प्रेम करूं। You see, love is a choice. आप देखें, जो प्यार है वो एक चुनाव You है, see, love is a decision. जो प्यार है वो एक फैसला है। That is why Jesus, He chose to love you and me in spite of who we are. इसीलिए जो यीशु मसीह है उसने चुना कि आप क्या है इसके बजाय कि वो हमसे प्यार You करें। don't always want to love, आप हमेशा नहीं चाहेंगे कि आपको प्यार किया जाए, but because Jesus has told, if you do not know love, you do not know me. It means we are living below a standard. और यीशु ने कहा है कि अगर तुम प्रेम को नहीं जानते तो तुम मुझे नहीं जानते। इसका मतलब ये है कि हम उस स्तर से नीचे रह रहे हैं। And Jesus began to rebuke the Pharisees for being man without the love of God. और यीशु मसीह उन फरीसी को डांटता है इसलिए कि तुम ऐसे व्यक्ति हो जिनके मन में प्यार ही नहीं है। Who are the Pharisees? जो फरीसीज थे, फरीसी थे, वो Look at the characteristic of a Pharisee. जो फरीसी थे उनके चरित्र को देखो। Pharisees are religious people, जो फरीसी थी वो एक धार्मिक थे, self-righteous. वो अपने ही आप में स्वार्थ धार्मी थे। You may be a Pharisee. हो सकता है कि आप भी फरीसी हो, I may be a Pharisee. हो सकता है कि शायद मैं भी फरीसी हूँ। Do you know if you are a Pharisee? क्या आप जानते हैं अगर आप फरीसी हैं तो You can be a Pharisee when you do not have the ability to receive correction and rebuke in your life. आप भी फरीसी हो सकते हैं अगर आपके अंदर ये योग्यता नहीं है कि आप दूसरों की जो अपनी जो गलतियां हैं उसको आप करेक्शन को स्वीकार सकें। You want to give correction, आप किसी को सही तो करना चाहते हैं, but you do not want to receive the correction. लेकिन आप उस करेक्शन को, सहीपन को आप स्वीकारना नहीं चाहते। Throughout the life of Jesus' ministry, Jesus was rebuking, correcting the Pharisees, but they would not want to listen. जो यीशु मसीह थे अपने पूरे जीवन समय में, उस सिविकाई के समय में, वो हमेशा फरीसियों को सही करते रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी यीशु मसीह की बात को नहीं माना। There are people who says, well, I only listen to God. There are people who says, I only listen to God. और ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि मैं सिर्फ परमेश्वर को सुनता हूँ, I don't listen to man. मैं किसी व्यक्ति को नहीं सुनता। Such is the level of stubbornness. और ये है हठीलेपन का एक स्तर। The book of Hebrews chapter 13 verse 17 says, इब्रानियों की पुस्तक उसका अध्याय 13 का 17 कहता है, says, obey your spiritual leaders. ये कहता है अपने अगुओं की आज्ञा को मानो। Submit to their authority or do what they say. वो कहता है कि उनके अधीन रहो और जो वे कहे वो करो। And their work is to watch over your souls and they are accountable to God. और वो कहते हैं कि वो तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। Give them reasons to do this with joy and not with sorrow. वे यह काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस लेकर, Because it will certainly not be
to your benefit. क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा। As a pastor, एक पासवान होने के नाते I know deep in my heart मैं अपने मन की गहराई में जानता हूं I am accountable for your life. और मैं आपके जीवन के लिए मुझे लेखा जोखा देना पड़ेगा And I am answerable to what happens in your spiritual life. और आपके आध्यात्मिक जीवन में जो हो रहा है मुझे उसका जवाब देना And पड़ेगा। that is why many times I begin to call you up sometimes. और इसीलिए कई बार मैं आपको डांट देता हूँ I call you. और मैं तुम्हें बुलाता हूँ, I search for you. मैं आपको I ढूंढता हूँ begin to ask, how is your life going on? और मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका जीवन कैसा चल रहा है। Sometimes if required, I begin to correct you. हो सकता है जरूरत पड़ने पर मैं आपको सही भी करूँ And I begin to rebuke you. और मैं आपको डांटता हूँ And we begin to discuss about a lot of things. और हम बहुत सी बातों पर बातें करते And the intention is not to put you away, but intention is that I would help you so that you would walk closer with Jesus. और मेरी जो सोच है वो ये नहीं है कि मैं तुम्हें दूर कर दूं, लेकिन मेरी सोच ये है कि मैं तुम्हें यीशु के और करीब ले आऊं। Now that is between the pastor and the church. और अब ये एक पासवान और कलीसिया के बीच Jesus also talks about it in the Bible in the book of 1 Peter chapter 5 verse 5. और यीशु मसीह इसके बारे में बात करते हैं पहला पत्रस उसके 5:5 में। It is, you also must be submissive to one another और ये कहता है कि आप एक दूसरे के अधीन में रहो with all humility. पूरे मानवता के साथ, दीनता के साथ। How can you be submissive to one another? आप कैसे एक दूसरे के अधीनता में रह सकते हैं? When every one of us, we begin to have pride in our heart. जब हम में से हर एक के मन में घमंड, When we begin to look at the fault of everyone. जब हम हर एक दूसरे की गिरावट को देखना When we चाहते हैं, begin to see the fallen nature of every person. जब हम देखना चाहते हैं किसी दूसरे सामने के स्वभाव को गिरते हुए। None of us are perfect. हम में से कोई भी जन All of us have weaknesses. हम में से हर एक जन के पास कमजोरियां हैं, But if we only keep on looking at the weaknesses, लेकिन अगर हम सिर्फ उन कमजोरियों को ही देखेंगे, if we only keep on thinking about the negativity of that person, लेकिन अगर हम सिर्फ उस व्यक्ति की नकारात्मक बातों को ही सोचेंगे, do you think you will ever be able to submit to one another? क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आप कभी भी इस योग्य होंगे एक दूसरे के अधीन आने में? Do you think you'll be able to love a person? क्या आपको कभी महसूस होता है कि आप कभी इस योग्य होंगे उस व्यक्ति को एक दूसरे से प्यार करने के लिए? It will not be. ये नहीं हो सकता। There was a tree in Africa, एक पेड़ है अफ्रीका में, and the tree is such that if you keep on scolding the tree, और वो पेड़ ऐसा है अगर आप उस पेड़ को उल्टा सीधा कहेंगे, if you keep on cursing the tree, अगर आप उस पेड़ को श्राप देते and रहेंगे, it says you come back after a few days, और वो कहता है अगर आप कुछ दिनों बाद आएंगे then the tree, you will see the tree dead. और आप देखेंगे कि जो वो पेड़ है वो मर गया है। It shows you the power of your mouth, ये दिखाता है आपके मुख की सामर्थ्य को, power of your word, आपके शब्दों की सामर्थ्य को, and the power of your mind. और आपके दिमाग की सामर्थ्य को। When you begin to think negativity all the time, जब हम हर समय नकारात्मक बातों को ही you सोचते हैं begin to attract all negativity in your life. और हम जब अपने जीवन में हर एक नकारात्मक बातों को ही आकर्षित करते हैं अपनी ओर, That's why Luke 18:9 says इसीलिए लूका की पुस्तक उसका अध्याय 18 के 9 में लिखा है that Jesus speaks about those who trust about themselves and about those who only knows how to despise others. और यीशु बात करता है उन लोगों की जो सिर्फ अपने आप पर ही भरोसा रखते हैं और हमेशा दूसरों को तुच्छ दिखाते हैं। Some people come to the church कुछ लोग हैं जो कलीसिया आते हैं with such attitude. ऐसे स्वभाव से। I'm not saying any one of you here. मैं जो यहाँ पर है उनमें से किसी को नहीं कह रहा हूँ। It can be any organization, any church, any place. कोई भी संस्था या कोई भी कलीसिया हो सकती है आपकी जगह पर। Maybe you have really not changed your heart. ऐसे जन जिन्होंने वाकई में अपने मन को नहीं बदला होता, You only want to find fault with others. आप सिर्फ लोगों की जो गिरावट है उसको देखना चाहते हैं। You begin to enhance the character of the dark world. आप उस अंधकार संसार का जो चरित्र है उसमें आप बढ़ने What लगते is हैं। the characteristic of the devil? उस शैतान के चरित्र क्या है? The characteristic of the devil is, number one, he's the father of all lies. Number two, he is the accuser of the brethren. और जो पहला चरित्र है उस शैतान का वो है कि वो हर एक झूठ का पिता है। दूसरा कि वो हर एक पर दोष लगाता है। He keeps on accusing.
वो हमेशा दोष लगाता है, keeps on shaming people. वो हमेशा लोगों को शर्मनाक महसूस करवाता And है। if you're any one of them, और अगर आप उनमें से कोई एक हैं, or you're near someone such as that, और या फिर आप सुनते हैं किसी के बारे में ऐसा, I encourage you to stay away from such people. और मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि आप ऐसे लोगों से दूर रहें। When you begin to be connected to such people, जब हम ऐसे लोगों के साथ संगति रखते हैं, then your heart will be toxic. तो फिर जो आपका मन है वो जहरीला हो जाता Your है, mind will be toxic, your life will be toxic. आपका जो दिमाग है वो जहरीला हो जाता है, आपका जो जीवन है वो नाशवान हो जाता है। Remember, a person who goes around finding fault, speaking ill about others, and finding all kind of illness, they are only enhancing and supporting the devil's characteristics. सोचिए ऐसे व्यक्ति के बारे में जो सिर्फ बाहर जाता है सिर्फ इसीलिए कि वो लोगों के बारे में बुरा कहे, उनको नीचे गिराए। सोचिए ये वो जन है जो हमेशा उस दुष्ट के चरित्र में पड़ रहे हैं। 2 Timothy chapter 4 verse 2 says, दूसरा तिमोथीस उसका अध्याय 4:2 कहता है, preach the word, be ready in seasons and out of seasons, correct, rebuke, encourage with great patience and careful instructions. कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। Number 2, दूसरा, you can also be a Pharisee आप फरीसी हो सकते हैं if you are a person who is always critical of the work of the Holy Spirit. या जब आप उस पवित्र आत्मा के कार्यों के लिए आप कामों में आप टांग अड़ाते हैं। Many of us, we are so fine with the Father, the Son, हम में से बहुत से जन है जो स्वर्ग पिता उससे खुश, जो पुत्र है उससे खुश हैं, but the moment we begin to speak about the triune God, the Holy Spirit, some of them are so uncomfortable about the manifestation and work of the Holy Spirit. लेकिन जब भी हम बात करते हैं उस त्रिएक शक्ति की जिसमें पवित्र आत्मा भी शामिल होती है, तो जो कुछ लोग हैं वो उसमें थोड़े से नाराज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। When some people begin to pray in the Spirit, जब कोई जन आत्मा में प्रार्थना करने लगता है, you have a problem. आपको समस्या होती है। When some of you begin to pray in tongues, जब कोई भी जन अन्य भाषा में प्रार्थना करने you have लगता a है, problem. आपको समस्या When हो some of जाती है। you begin to see the manifestation of God's work being healed and demonic possessions being delivered, you have a problem. जब कोई जन देखता है कि जो पवित्र आत्मा की जो सामर्थ्य काम वो हो रहे हैं, जो बीमार है वो चंगाई पा रहे हैं, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है वो आजाद हो रहे हैं, आपको समस्या होती है। When I was in the conference, जब मैं इस सम्मेलन में था, in this revival camp, उस बेदारी वाला जो कैंप है, a boy came to me. एक लड़का मेरे पास आया। He was about 16 years of age. वो 16 साल की उम्र का था। He said, I have not laughed for a long time. वो कहता है कि मैं कई लंबे समय से मैं हंसा नहीं हूँ, And also, I don't know what tears is because I have not cried for many years. और वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि आंसू क्या होते हैं क्योंकि मैं कई सालों से रोया भी He नहीं। says, my emotions are gone and my heart is so hard. वो कहता है कि जो मेरी भावनाएं हैं वो जा चुकी है, और जो मेरा मन है वो बहुत कठोर हो गया है। He says, I want to commit suicide. वो कहता है कि मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ, And I began to pray for him. और मैं उसके लिए प्रार्थना करने I लगा। began to spend time and counseling him. मैं उसके साथ काउंसलिंग में समय बिताया, And during the service, और उस सभा के दौरान I prayed for him. मैंने उसके लिए I asked the Holy Spirit to come and touch his life in his heart. और मैंने प्रार्थना करी पवित्र आत्मा से कि वो आए और उसको छुए। When the Holy Spirit comes, the manifestation is so visible. जब पवित्र आत्मा उस पर आया तो काम इतना दृश्य वाला था, He first of all started to cry in many years for the first time. और वो सबसे पहले वो रोने लगा कई सालों बाद। Then second, he began to laugh so hard. और दूसरा फिर वो हंसने लगा बहुत, He began to shout and laugh. वो चीखने लगा और हंसने And लगा। I said, you say you have never laughed, for here you are in Jesus' name. Receive all the joy in Jesus' mighty name. और मैंने कहा कि तूने कहा था कि तू कई सालों से नहीं हंसा है। मैंने उसे कहा कि तू यीशु के नाम में चंगा हो और उसके आनंद को स्वीकार कर। I said, now I'm going to make all of you dance. और मैंने कहा कि अब मैं आप सभी को नाचने में, I called upon the worship team and we began to start singing. और मैंने वर्शिप टीम को वहाँ पर बुलाया और हम सब गीत गाने लगे, And we also began to sing. और हम भी वहाँ पे गाने We began लगे, to jump. हम वहाँ पे उछलने We लगे, began to dance. हम वहाँ पे नाचने लगे। And there were 2 old ladies. वहाँ पर 2 बूढ़ी स्त्रियाँ थी And they also began to dance. और वो भी वहाँ पे नाचने लगे। We see how the act of God was moving in the room and how He was manifesting and bringing people out of their sorrow, their
and their cry. आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो खुदा को जो काम था उस कमरे में हो रहा था कि जो लोग थे वो बाहर आ रहे थे अपने परेशानियों से, अपने मानसिक समस्याओं से। Many years ago, कई साल पहले when I saw such thing in my life, जब मैं कभी ऐसी बातों को अपने जीवन में I देखता began to think this is a very cultic. और मुझे ऐसा लगता था कि ओ ये बेकार है। Hallelujah. But you see, what I want to tell you is that when the Holy Spirit come upon you, when you begin to understand, you will not only see many things, but you will also discern many things. लेकिन देखिए जब पवित्र आत्मा आता है और आपको बताता है तो सिर्फ आप कुछ चीज़ों को सिर्फ देखते नहीं लेकिन बहुत सी चीज़ों को आप होते हुए और घटते हुए देखते। I was praying for someone. मैं किसी के लिए प्रार्थना कर रहा I was as about praying for someone. I saw that this boy nearly lost his life. और जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैंने देखा कि ये जो लड़का है ये अपने जीवन को खोने ही वाला The था। Holy Spirit spoke into my ear that this man is been saved, but all of his friends are dead. पवित्र आत्मा ने मेरे कानों में कहा कि इसके जो बाकी दोस्त है वो मर गए हैं लेकिन ये बच गया है। And when I began to tell him, he began to cry. और जब मैंने उससे कहा तो वो रोने लगा। And he said, yes, one night some people came looking for me to murder me, but in spite of me, they took my friend. लेकिन उसने कहा बाद में कि हाँ ये सही है, कुछ समय पहले कुछ लोग थे वो मुझे मारने के लिए आए थे लेकिन मैं नहीं मिला तो मेरी जगह उन्होंने मेरे दोस्त को मार दिया। We were going and taking the same path. हम एक ही रास्ते से जा रहे थे। I would have been dead, मैं but I am उस safe now. मैं उस वक्त मर गया होता लेकिन मैं आज बच गया हूँ। It is important that you understand the things of God, and if you do not understand, do not make a mockery out of it. देखिए ये ज़रूरी है कि आप चीज़ों को समझें। अगर आप नहीं समझते हैं तो आप बिल्कुल भी उसका ठट्टा ना उड़ाएं। It says, worship the Lord God. Worship God in truth and in spirit. देखिए वचन कहता है कि खुदा की उपासना करो, उसकी उपासना करो आत्मा और सत्य के साथ। You cannot understand God in the flesh. आप कभी भी खुदा को अपने शारीरिक स्वभाव से नहीं समझ सकते Because the Bible says God is a spirit. क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर एक आत्मा है। You will have to worship Him in spirit and in truth. आपको उसकी उपासना आत्मा से और सच्चाई के साथ करनी होगी। And if you need to understand Him more deeply, you have to understand Him not in the flesh but in the spirit. लेकिन अगर आप उसको और गहराई से जानना चाहते हैं तो जरूरी है आप उसे शारीरिक स्वभाव से ना समझे लेकिन आत्मा में समझे। Hallelujah. So there are certain things that you will have to understand, the things of God. And if you do not understand, ask the Holy Spirit to make you तो understand. देखिए ऐसी बहुत सी बातें हैं उस परमेश्वर की जो आपको समझने की जरूरत है, लेकिन अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो खुदा से कहें कि वो आपको समझाए। In the Old Testament, उस पुराने आयाम में on the day of atonement, एक जो पश्चाताप का जो दिन था उस दिन on the day of atonement, the high priest would bring a lamb and cut the lamb and sprinkle the blood over the ark of the covenant. जो मुख्य पुजारी था वो उस बलिदान को, उस मेमने को लाता था, उस वेदी पर उसको काट के रख देता था और उसके लहू को उस वेदी पर छिड़कता था। The ark of the covenant had the 10 commandments. और वो जो बाचा का जो संदूक था उसमें 10 आज्ञाएं थी। It represented the law of God. वो खुदा के व्यवस्था के The blood that was sprinkled represent the love of God. जो लहू जो उस पे छिड़का जाता था वो खुदा के प्रेम को दिखाता था। You know what? क्या आप जानते If हैं you do not understand the things of God, if you do not understand the law of God, then you will not really understand how much God loves you. अगर आप खुदा के प्रेम को नहीं समझते, अगर आप खुदा के कामों को नहीं समझते, उसकी व्यवस्था को नहीं समझते तो आप परमेश्वर के प्रेम को भी नहीं समझ सकते। Sometimes in the church, I've come across situations where I have tried to correct some people कभी कभी कलीसिया में ऐसी स्थिति अभी आई है जहाँ पे मैंने लोगों को सही करना चाहा, because I wanted them to understand how God sees the situation is. क्योंकि मैं उन्हें बताना चाहता कि जो खुदा है वो किस तरीके से स्थिति को देखता है। Sometimes you do not understand how God feels about it. You do not know that this is a sin, and you begin to feel bad because this has been exposed before you. And there you are, you go on your own way. और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको नहीं पता कि ये पाप है और वो किसी दिन आप वो करते हैं और किसी दिन वो उजागर होकर बाहर आ जाता है और जब वो सामने आ जाता है तो आप फिर वहां से चले जाते हैं। You stop coming to the church, आप कलीसिया आना रोक देते हैं and you begin to speak all kind of things around. और आप फिर सब जगह बातों को बोलते You हैं, begin to fall in trouble. आप परेशानियों में गिर जाते हैं Then after many months and years, you come back to the church again. और फिर कई सालों और महीनों बाद आप वापस कलीसिया में आ As in जाते the heart of a Pharisee.
और ये मन था फरीसी। You were a Pharisee because you do not want to be corrected. आप एक फरीसी की तरह है क्योंकि You do आप not सही want नहीं to होना live चाहते। up to the standard of God, but you want people to live up to your standard. आप वो लोग हैं जो फरीसियों के समान है, जो खुदा के स्तर में नहीं रहना चाहते, लेकिन आप लोगों के स्टैंडर्ड के अनुसार रहना You चाहते हैं। want God to fall down to your standard. आप चाहते हैं कि खुदा आपके लिए आपके स्टैंडर्ड तक नीचे गिर जाए। And you, because you do not understand the things of God, you will never understand the grace of God. और क्योंकि आप खुदा की बातों को नहीं समझ पाते हैं, तो आप खुदा के अनुग्रह को भी नहीं समझ पा रहे हैं। So as I come to an end, और जैसे कि मैं अंत की ओर आ गया हूँ, and John 12:37, यूहन्ना की पुस्तक उसका अध्याय 12 का 37 कहता है, even after Jesus had performed so many signs in their presence, they still would not believe in him. उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास ना किया। Oh, so many years have passed by since you walked with Christ. And you have seen signs, miracles, wonders, but your heart would not change. बहुत से साल बीत गए कि आप खुदा के साथ चल रहे हैं, आपने उसके कामों को देखा है, उसके चिन्ह और चमत्कारों को भी देखा है, लेकिन फिर भी आपका मन नहीं बदला। The purpose of a miracle, the purpose of things he performs for you is not that he is a miracle performer. जो उसका उद्देश्य था उन चिन्ह और चमत्कारों को करने का, वो ये नहीं था कि वो चमत्कार करने वाला है, He is not a magician. वो कोई जादूगर नहीं था। Don't come every time and tell me to please pray for this, please pray for that, please pray for these things. And again you come back with the same topic. आप कभी भी ऐसे ना आए, मेरे लिए इस चीज़ के लिए प्रार्थना करें, उस चीज़ के लिए कहें, इसके लिए, और हर बार उसी चीज़ के लिए आप प्रार्थना करें। You receive those things, आपने उस चीज़ को पा लिया then है, you go away. फिर आप चले जाते हैं, And when another problem comes, you come back. और फिर से जब कोई समस्या आती है आप फिर वापस आते हैं, Then you say, please pray for me. फिर आप कहते हैं मेरे लिए प्रार्थना And करें। when God answers you, then you still go back. और जब खुदा आपकी बातों का उत्तर दे देता है, आप फिर से दूर चले जाते हैं। You are no different than a Judas, आप उस यहूदा स्कृति से अलग नहीं है, the one who stayed with him for 3 years and he began to fall in sin. वो जज जो खुदा के साथ 3 सालों तक चला, वो उस पाप में गिर गया। The purpose why he does is because he loves you. जो उसका उद्देश्य है कि वो ये क्यों करता है, वो इसलिए कि वो आपसे प्रेम करता है। He wants you to know him. वो चाहता है कि आप उसको जाने, He wants you to take a step of faith and walk with him. वो चाहता है कि आप विश्वास से एक कदम बढ़ाएं और उसके साथ चलें। I pray today as you listen to this sermon, और मैं प्रार्थना करता हूँ जैसा कि आपने आज इस संदेश को सुना है, you will know the heart of Jesus. आप यीशु मसीह के मन को जानें, You will know the love of God. आप खुदा के प्रेम को जानेंगे, You will know how God wants to rebuke and correct your life. आप जानेंगे कि खुदा किस तरीके से आपके जीवन में आपको डांट और One सही of you करता है। have turned away from God. I encourage you to come back in alignment with God's will. अगर कोई भी जन है जो खुदा से मुख फेर चुका है, तो मैं उसको प्रोत्साहित करता हूँ कि वो आए और खुदा के साथ अपने मन को एक करे।